नमो वितरागाय नमो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्वताहुणम ऐसो पंचन मुक्तारो मंगलाणं च सौवेसिं परमं भवै मंगलम् नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद બાળકો આજે આપણે વિધિ બોલાવી લઈએ ઓકે પછી પ્રાર્થના કરીએ બોલો हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु हे श्री दादा भगवान हे श्री दादा भगवान અને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક સત્સંગમાં બેસવાની સત્સંગ સાંભળવાની સત્સંગ સમજવાની અને સત્સંગ રૂપ થવાની પરમ શક્તિ આપો હું ભાવ કર્મ નો કર્મ દ્રવ્ય કર્મ મન વચન કાયા મારા તથા મારા નામની સર્વ માયા આ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુના સુચરણોમાં સમર્પણ કરું છું હું શુદ્ધાત્મા છું શુદ્ધાત્મા છું શુદ્ધાત્મા છું શુદ્ધાત્મા છું શુદ્ધાત્મા છું જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ ચાલો આપણે પ્રાર્થના કરીએ દેવમ હિરેન કાકા જય जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हिरण काका। जय हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, कि जिस वजह से मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में कायम मदद रूप हो। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग चुकना ना ही चाहिए, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा करने में ही उपयोग हो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं में और अन्य लोगों के स्वयं के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मोरल और प्योर रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ કાકા આપણે થોડું હોમવર્ક ચેક કરી લઈએ. આજે નંબર 3 ને નંબર 4 ઉપર જ બોલવાનું છે.
વિધિ દીદી હા, જય સચ્ચિદાનંદ. આજે મારાથી પહેલી કલમ નથી પડાઈ. મારાથી મમ્મીનો અને પપ્પાનો બંનેનો અહમ દુભાઈ ગયો હતો. પછી મેં દાદા પાસે માફી માંગી અને પ્રતિક્રમણ કર્યા અને ફરીથી આવી ભૂલ ના થાય એ માટે શક્તિ માંગી. આજે મારાથી ચોથી કલમ, પાંચમી કલમ, ત્રીજી કલમ, સાતમી કલમ અને આઠમી કલમ પડાય છે. ત્રીજી કલમમાં મારાથી કોઈ પણ સર કે ટીચરનો અહમ નથી દુભાવાયો. ચોથી કલમમાં મારાથી આજે કોઈના પ્રત્યે અભાવ તિરસ્કાર નથી થયો. પાંચમી કલમમાં આજે મારાથી કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા નથી બોલાઈ અને સાતમી કલમ પડાઈ હતી. જમતા પહેલા સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પ્રાર્થના કરી હતી અને આઠમી કલમમાં કોઈનું પ્રમાણ નથી દુભાવ્યું. ઓકે સો પપ્પા મમ્મી સાથે શું થયું હતું? હા, એટલે કાલે હું જસ્ટ મસ્તી કરતી હતી, એમાં ખબર નહીં કઈક ખોટું લાગી ગયું તો પપ્પાને થોડો ગુસ્સો આવી ગયેલો, એટલે મારાથી પપ્પાનો અહમ દુભાઈ ગયેલો, એટલે પછી મેં પ્રતિક્રમણ કર્યા હતા. વેરી ગુડ. ખુશી જય સચ્ચિદાનંદ. જોરથી બોલજે. મારાથી સાતમી કલમ નથી પડાઈ કારણ કે મેં જમતા પહેલા પ્રાર્થના કરવાનું ભૂલી ગઈ હતી. અને ફોર્થ નંબર, પહેલી કલમ, બીજી કલમ, ત્રીજી કલમ, ચોથી કલમ અને પાંચમી કલમ પડાઈ હતી. ઓકે વેરી ગુડ. નયન આજે મારે બધી જ કલમ પડાઈ છે અને અને મારે આજે બધામાં દાદા ભગવાન જોયા હતા. આજે એક પણ નેગેટિવ થોટ આવ્યો નથી. ઓકે. રુદ્ર જય સચ્ચિદાનંદ. આજે તો મારે બધી કલમ પડાઈ છે અને આજે નેગેટિવ થોટ્સ બી નહીં અને આજે મેં કોઈ ભૂલ બી નથી કરી. ઓકે. હેતા હેતા છે? હા હેતા હા, જય સચ્ચિદાનંદ. આજે જય મારી બધી કલમમાં હું સિન્સિયર રહી હતી અને મેં દાદા ભગવાન પાસે એવી જ શક્તિ માંગી હતી કે મારાથી બધી જ કલમ પડાય અને આજે મારી મમ્મીનો પણ અહમ નથી દુભાવ્યો. ક્યા બાત હે. બહુ સરસ બહુ સરસ. અને હિતાશ્રી બેન જય સચ્ચિદાનંદ. આજે નો નો હેતાશ્રી છે, હિતાશ્રી નહીં, હિતાક્ષી બા નહીં. આજે હું બધી જ કલમમાં હેતશ્રી દીદી જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. આજે હું બધી જ કલમમાં સિન્સિયર રહી હતી અને એક પણ કલમનું ઉલ્લંઘન કર્યું નથી. આજે મેં દાદા ભગવાન પાસે રોજ વહેલું ઉઠાય એવી શક્તિ માંગી હતી. ઓકે. તિરસ્કાર કોઈને નથી કર્યો આજે? ના, આજે અમે બહાર આવ્યા છે એટલે એવું કઈ નથી થયું. ઓકે વેરી ગુડ. સમ્યક આજે તો મારે બધી જ કલમ પડાઈ છે પણ પહેલી અને સાતમી નથી પડાઈ. સાતમામાં મારે એવું થયું કે ખાતી વખતે મારે પ્રાર્થના બોલાઈ હતી અને પેલા પહેલી કલમમાં દીદીનો થોડો અહમ દુભાઈ ગયો હતો. શું કરશું દીદીને? તે દીદીને થોડું હેરાન થઈ ગયું. તું હેરાન કરતો દીદીને? હા. તો હે કોઈ દીપક દાદા કહે તું તો બહુ સરસ છે. હે પણ આજે થોડુંક જ કર્યું. થોડુંક જ કર્યું. ઓકે પછી પ્રતિક્રમણ કરી દીધા. ઓકે. માફી માંગવાની દીદી પાસે. હા ઓકે. હેતવી હા, જય સચ્ચિદાનંદ. આજે પહેલી કલમ નથી પડાઈ, મમ્મીનો થોડો અહમ દુભાઈ ગયો તો બાકી બીજી, ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી અને સાતમી કલમ પડાઈ છે. શું થયું તું પાછું મમ્મી સાથે? એટલે આજે મમ્મી કઈક બપોરે કઈક વાત કરતી હતી તો એમાં થોડું મમ્મીને એમ કહી ગયું હતું કે તું વારે વારે મને જ કેમ કે છે, એક કામ તો ભાઈને પણ બતાવી શકે છે ને. હું બધું કામ પતાઈને બેઠી હતી પછી એમ કે તું આ કર લે, એટલે પછી થોડો ગુસ્સો આવી ગયો હતો. પ્રહર પ્રહર કેમ? ઓકે અનમ્યુટ કર. હા બોલો. સચ્ચિદાનંદ. આજે મેં
દાદા પાસે કોઈ શક્તિ નથી માંગતી, આજે રહી ગઈ. અને મેં આજે બધી ક્રિયામાં દાદાને યાદ કરેલા અને આજે મેં બધી કલમ ફોલો કરી હતી. આજે શું થયું? આજે રવિવાર પાડી નાખ્યો? હા હા, આજે રવિવારની છુટ્ટી કરી નાખી? હા આજે ભૂલી ગયેલો. ભૂલી ગયો? ખાવાનું ભૂલી ગયો તો? હે, ખાવાનું ભૂલ્યો તો? હિતાક્ષી બા જય સચ્ચિદાનંદ. ફર્સ્ટ કલમ મારથી પડાણી હતી. ફર્સ્ટ કલમમાં કોઈને પ્રોબ્લેમ નહોતો દુખાયો. સેકન્ડ કલમમાં મેં સમરસી ખોરાક લીધો હતો. એમાં દાળ, ભાત, શાક, રોટલી, ગોળનો ઉકાળો, એમાં કડવો લીમડાનો પાન, તુલસી, ગળો અને આદુ. અને નાઇન્થ કલમમાં ટ્રી પ્લાન્ટ્સની પ્રાર્થના કરી હતી કે દાદા ભગવાન આ બધા ટ્રી પ્લાન્ટ્સ પામે ને મોક્ષ પામે. કે અપૂર્વ અપૂર્વ હા, જય સચ્ચિદાનંદ. આજે મેં મારાથી બધી જ કલમ પઢાઈ હતી. આજે મેં દાદા ભગવાન પાસે મારી સ્ટડી માટે અને મારા પ્રભુ દાદાને સારું થઈ જાય હેલ્થને એવી મેં શક્તિ માંગી હતી. આજે મેં બધી જ દાદા ભગવાનના દર્શન કર્યા હતા. ઓકે. આપણે રુદ્ર આપણે થઈ ગયું ને? રુદ્ર તારું થઈ ગયું ને? હા, થઈ ગયું. હા, મને લાગ્યું. ઓકે, હવે વત્સલ. આજે હું ત્રિમંત્ર 9 કલમ અને શુદ્ધાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના બોલ્યો હતો. મારાથી આજે પહેલી કલમ નહોતી પડાઈ, મેં દીદીનો હમ દુબાઈ દીધો હતો. 7મી કલમ મેં મારાથી પડાઈ હતી. અને આજે મેં દાદા જ પાસેથી પ્રભુ દાદાની હેલ્થ માટે પેલું શું કહેવાય પ્રાર્થના કરી હતી અને બધી ક્રિયામાં દાદા ભગવાનને યાદ કર્યા હતા. બહુ સરસ. અનન્ય દીદી. જય સચ્ચિદાનંદ. મારાથી આજે બધી કલમો પડાઈ હતી. તિરસ્કાર પણ નહોતો થયો, સમરસી ખોરાક પણ લેવાઈ ગયો હતો અને કોઈનો અહમ પણ નહોતો દુભાયો. આજે મેં દાદા ભગવાન પાસે પ્રભુ દાદાની હેલ્થ માટે, મારી સ્ટડી માટે શક્તિ માંગી હતી અને આજે બધી ક્રિયામાં દાદા ભગવાન યાદ આવ્યા હતા. બહુ સરસ. તારે ને દીદી વત્સલ વચ્ચે શું થયેલું? આજે એટલે મેં મસ્તી કરી અને એને એવું લાગ્યું કે હું સાચું કે ના એની જોડે ગુસ્સે છું, એટલે એને મારા ઉપર થોડો ગુસ્સો કરી દીધો હતો. હા, ઓકે. અને કોઈ વસ્તુ કે એનો કોઈ તિરસ્કાર નથી કર્યો આજે? ના, નથી થતો. હવે ઓછો થાય છે. ઓ વેરી ગુડ. ઓછો થાય છે? હા, એટલે અમુક વાર થઈ જાય પણ પહેલા કરતા ઓછો થાય છે. ઓકે, નોંધ કરવાની આપણે. શેના બાબત થાય છે? ખાવા બાબત થાય છે? અમુક વાર પહેલા તો એવું હતું જમવાનું નહોતું ભાવતું એટલે વધારે જમવા પ્રત્યે જ થતો હતો તિરસ્કાર. હા, હવે જમવા પ્રત્યે જરા 0 કરી નાખવાનું. હા. મમ્મી જે બનાવે ખાઈ જ લેવાનું. દેવમ? જમી લઉં છું હવે. બહુ સરસ. બહુ વેરી ગુડ. દેવમ? જય સચ્ચિદાનંદ. આજે મેં પહેલી, 5મી અને 7મી કલમ પાડી હતી. પહેલીમાં આજે મેં કોઈનો અહમ નથી દુભાયો. 5મીમાં આજે મેં કોઈ પણ કડો ભાષા, તંત્રી ભાષા નથી બોલી અને 7મીમાં મેં આજે લઈ લીધો તો સમરસી ખોરાક અને ખાતા પહેલા પ્રાર્થના બી કરી હતી અને આજે કશું બહારનું નથી ખાધું. ઓકે, વેરી ગુડ. કાલે કોનો ટર્ન છે? કાલે અનન્યા દીદી યા તો પછી તારકનો. નહીં, એક જ તારે કહેવાનું. અનન્યા દીદીનો. ઓકે. ઓકે. હિરેન કાકા સાંભળ્યું બધાનો હોમવર્ક અને પછી પ્રહરનો ક્વેશ્ચન લઈએ. પછી થોડી વાત કરો પછી આપણે પ્રહરનો ક્વેશ્ચન લઈએ. બરાબર છે. એટલે આ થોડું एक मिनट हम भूल गए आज तो हिंदी में. हाँ जी. थैंक यू प्रहर. सॉरी ऑडियंस. या ये अभी अभाव तिरस्कार की बात हुई तो ये मेरा एक संजोग अभी उसके बारे में कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ी उसमें कोरोना पॉजिटिव आया था. तो ये जो संजोग आया वो संजोग में मैंने देखा कि कहाँ-कहाँ अपनी
किस तरह की गलतियां होती है, जिसकी वजह से ये अपने शरीर के अंदर, सबसे पहले तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मेरे मन में कुछ न कुछ गलतियां मन से होती है, मन में कुछ न कुछ ऐसा मन से व्यवहार होता है कि और गलतियां होती है, जिसकी वजह से अपने मन से अपने तन के अंदर रोग शुरू होता है। तो एक संजोग बना कि जैसे जयवेशानंद जी से बात हुई, उन्होंने थोड़ा मेरे को टकोर करी कि भाई कुछ भी समझो के बाहर से कुछ टिफिन मंगाओ तो अच्छा बुरा देखने का नहीं, ऐसा टकोर करी। तो मैंने सोचा कि अच्छा बुरा नहीं देखने का मतलब मेरे अंदर कुछ ऐसा चला था। तो मैंने मेरे अंदर देखा तो कहीं ना कहीं मैं काफी व्यवहारों में अटक रहा था। कौन से व्यवहार में? कि मेरे को कोई भी चीज है तो उसके अंदर स्वच्छता चाहिए, चौखाई चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कोई 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 हाथ धोए बिना कुछ भी छुए तो मेरे को अच्छा ना लगे। लेकिन ये व्यवहार से मेरे को, ये व्यवहार मेरे बाहर दिखने में बहुत अच्छा था, लेकिन क्या हो रहा था, तो जो अभी बात करी कि अभाव तिरस्कार होते हैं, तो बहुत अभाव तिरस्कार होते थे उसके अंदर, इतने सारे अभाव तिरस्कार होते थे। और किसका अभाव तिरस्कार करते हैं? तो कि जिसके अंदर परमात्मा बैठे हैं उसका अभाव तिरस्कार करते हैं। तो कि सबसे पहले अपने अंदर जो रोग होता है, तो सबसे पहले अपने को क्या होता है कि तन से रोग की शुरुआत होती है, कि नहीं, तन से रोग शुरुआत नहीं होती है। सबसे पहले अपने मन के अंदर रोग होता है। और मन के अंदर जो कितने प्रकार के रोग है, किस तरह से रोग अंदर आते हैं, तो वो अभी अपने को जो मुहावरा कराते हैं 9 कलमों का, तो 9 कलमों में जितना भी दादा भगवान ने जितनी भी कलमें बताई है, वो कलमें जहां जहां पे भी ब्रेक होती है वहां अपने अपने अंदर रोग है। जैसे किसी का अहम दुभाते हैं तो अपने अंदर रोग है, कोई धर्म का प्रमाण दुभाते हैं तो अपने अंदर रोग है, किसी का अभाव तिरस्कार होता है तो अपने अंदर उस प्रकार का रोग है। तो ये जो अपने मन में जिस प्रकार के रोग है, उसके हिसाब से फिर बाहर जो वातावरण होता है, वो बाहर का वातावरण अंदर वर्क करता है। ऐसा मैंने ये अभी अनुभव किया। ओ, बहुत बहुत अच्छा। तो आप अभाव अभाव बोला तो आपको किसको अभाव होता था? आपको कैसे अभाव होता था? तो कि जैसे कोई काम करने वाले हैं तो काम करने वाले सही काम नहीं करेंगे, खाना बनाने वाले कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हाथ रख के फिर खाना बनाएंगे, और देखूंगा तो सीधा मेरे को तुरंत अभाव तिरस्कार हो जाता था कि ये सही नहीं करते। कभी कभी तो मैं करने लग जाता था कि चल आप छोड़ दो, मैं कर लेता हूँ। लेकिन पता चला कि अभाव ये होता है, किसके पर होता है? तो कि जिसके अंदर परमात्मा बैठे हैं, तो परमात्मा का भी नहीं होता है। तो हिरण काका, ये अनन्या दीदी है, उसका तिरस्कार आता है, तो वो तिरस्कार नहीं आए ऐसे क्या करना पड़ता है? हाँ, तो कि ये जो अभाव तिरस्कार होता है, तो क्यों होता है? तो कि कहीं ना कहीं हमारी कोई भी व्यवहार है, जैसे मेरी बताई कि स्वच्छता का है पकड़, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर कोई भी व्यवहार की पकड़ है कि मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे सामने ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को ये स्वच्छता की बात करी तो कई अपने अंदर इस तरह की गलतियां होती है, जैसे मैंने मेरे अंदर देखी है कि जैसे कई बार सही झूठ का होता है कि कोई झूठ बोलता है तो बहुत असर हो जाती है, तो उसका बहुत अभाव तिरस्कार हो जाएगा। कोई किसी का भी कोई ना कोई अपने को व्यवहार पसंद नहीं है, वहां पे अपनों ने वो व्यवहार देखा तो अभाव तिरस्कार हो जाएगा कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इसको दिखा दूंगा, मैं इसको समझा दूं। बहुत सारी चीजें होती है, तो ये सब सारी जो चीजें होती है वो अभाव तिरस्कार में ही आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि पकड़, कोई भी चीज की पकड़ है, उसके हिसाब से वो पकड़ जो है वो अपनी मान्यता है कि भाई ऐसा होना चाहिए,
वो ऐसा होना चाहिए, वो मान्यता के हिसाब से उसकी पकड़ बन जाती है, और पकड़ बनने के बाद कहीं ना कहीं बाहर व्यवहार तो अपने हिसाब से होगा नहीं, बाहर का जो व्यवहार है वो अपने हाथ में है नहीं, तो के अपने हाथ में जो नहीं है बाहर का व्यवहार, वो बाहर का व्यवहार अपने हाथ में लेने के लिए जाते हैं, और बाहर का व्यवहार अपने हाथ में लेने के लिए जाएंगे और होगा नहीं, तो फिर क्या होगा? अभाव तिरस्कार हो जाएगा। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी प्रहर का क्वेश्चन लेगा, और दूसरा भी अभाव तिरस्कार की बात है तो बाद में बात करेगा कि वो खाने में जब आता है तब क्या असर होता है। प्रहर बोलिए। प्रहर, थैंक यू और रिमाइंड करने का हिंदी का। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मैं मैथ्स की प्रैक्टिस करता हूँ ना, तब मेरे सम्स रॉन्ग होते हैं तो मैं उदास हो जाता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है उसके अंदर? उसके लिए मैं उदास ना हूँ तो क्या करूँ? हाँ, तो कि जो क्वेश्चन आप जो सम्स करते हैं उसके अंदर जो रॉन्ग होता है वो आपको पता चलता है ना? हाँ, उसमें वो आवाज आती है। हाँ, तो जो आपको क्या समझने का है कि जो आप जो व्यवहार करते हैं वो व्यवहार, ये पढ़ने का जो व्यवहार है, वो पढ़ने का व्यवहार सही है कि गलत है? क्या? पढ़ते हैं आप, जो पढ़ाई करते हैं वो सही है कि गलत है? सही है। सही है। फिर ये जो सम्स करते हैं, सम्स की प्रैक्टिस करते हैं, वो सही है कि गलत है? सही है। फिर वो सम्स में आपकी जो गलतियां है वो आपको दिखती है, वो सही है कि गलत है? सही है। सही है। तो ये जो गलती आपने देखी, तो वो गलती सही हो जाएगी कि गलती गलती रहेगी? सही हो जाएगी। सही हो जाएगी। तो यहाँ ये समझने का है प्रहर कि जैसे आपको आपकी गलतियां दिखाई दी, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो उसी टाइम पे सही हो गया, तो उदासीन होने की जरूरत नहीं है, आपको खुश होने की जरूरत है। उदास कब होने का? कि जब आपको गलतियां पता ना चले तो उदास होने का है। क्या लगता है प्रहर? हाँ, पर उसमें वैसा नहीं है, गलत नहीं, मुझे आता है, पर उसमें मैं जब उसमें थोड़े फास्ट सम आते हैं तो उसमें फास्ट करने में वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। 6 होते तो भूल में से मैं 7 दबा देता हूँ, वैसा होता है। हाँ, तो ये आपको पता चला ना कि क्यों ऐसा होता है, तो कि जल्दीबाजी में। समझ में आया? जो आप जल्दीबाजी करते हो, तो आप अपने को समझने का कि अपने को जल्दीबाजी नहीं करने का है, अपने को ये जो करने का है तो ये सब कुछ सोच समझ के काम करने का है। जल्दीबाजी करेंगे तो गलती हो जाएगी। समझ में आया प्रहर? उसमें ओनली फॉर 1 मिनट का ही टाइम होता है। हाँ, लेकिन ये जो आपको आपकी गलती पता चलती है कि नहीं चलती है? चलती है। और गलती किस हिसाब से हुई वो पता चला कि नहीं चला? चला। बस, तो इतना ही जानने का है कि क्या गलती हुई और किस हिसाब से हुई। ओके। समझ में आया? हाँ। ओके। और प्रहर, हाँ। ऐसे होता है तो दादा को जो ऐसे छुट्टी दी दी है आज, ऐसे छुट्टी मत देना। क्या? आज दादा को आपने छुट्टी दिया ना, ऐसे जब आता है सिचुएशन तो छुट्टी मत देना दादा को याद करने का। समझ में आ गया? कुछ भी ऐसा होता तो यही दादा दादा दादा, तो ये सब समझ जाएगा। दीपकांत जी बोलिए। जय सच्चिदानंद। प्रहर, हाँ? आप नंबर के लिए क्या यूज करते हो, अपर लाइन की नंबर ब्लॉक?
यस, बट ऊपर वाला नंबर लाइन यूज करते हो कि साइड वाला? साइड वाला। साइड वाला यूज करते हो? हाँ साइड वाला, तो साइड वाला में ये फिंगर है ना, वो 5 पर रखने की होती है, वो पता है? ये फिंगर है ना, नंबर 2, हाँ। उसको 5 पर रखने की होती है, वो पता है? नहीं। तो आपकी गलती कभी नहीं होगी। सो 5, ये 4, ये 6, और ऊपर जाएंगे तो 7, ऐसा करके। ये जो कैलकुलेटर यूज करते हैं ना, वो इस तरह से करते हैं, तो उसमें गलती नहीं होती, क्योंकि वो तो देखते भी नहीं है नंबर को। आप समझे? आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए यू प्रैक्टिस दैट। फिर भी मेरे 1 मिनट में हाई स्कोर 100 है। इसीलिए बोलता हूँ, इसे और भी स्पीड बढ़ेगी आपकी। तो उसका काम हो जाएगा 28 आप को समझे? दीपक दादा। दिस इज द रेफरेंस, दिस विल ऑन, ये 5 पर रहेगा, ऊपर जाएगा तो 8, नीचे जाएगा तो 2। आप समझे? एंड जीरो के लिए थंब। मैं क्या करता हूँ, सारे नंबर्स के लिए ये दोनों, फिर वो 1, 4 और 7 के लिए ये। तो ठीक है, आपका जो है वो 0 के रखो, लिए अभी वो डिस्टर्ब नहीं होना, लेकिन देन फाइनली यू प्रैक्टिस दैट। ये जो अकाउंटिंग लिखते हैं ना, नंबर एंटर करते हैं ना, वो ऐसे करते हैं, वो देखते भी नहीं है, वो सामने देख के सीधा करते हैं। उस पर है ना 5 पर एक डॉट होता है, यू चेक, 5 पर एक डॉट होता है, तो यू विल नो दैट यू आर, ये मिडिल फिंगर आपकी 5 पर है। ओके। ग्रेजुअली प्रैक्टिस दैट, उससे स्पीड और भी बढ़ जाएगी, आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। एंड 0 इज थंब। ओके, जय सच्चिदानंद। हमारे को सीखना मिला आज। तो प्रहर, ये चाबी मिल गई तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा अभी। अच्छा, वेरी गुड। चलो, किसी को क्वेश्चन है? ओके, तो होमवर्क तो सेम रखेगा। ओके, सबको पोस्ट करने का, और चलो कल मिल लेंगे। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हिरेन काका, जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद रश्मि दादा, जय सच्चिदानंद दीपक दादा, चलो हम क्वेश्चन लेगा। जय सच्चिदानंद हिरेन काका, जय कश्यप भाई का सच्चिदानंद। सब ऐसे म्यूट को कर जय देगा तो। सच्चिदानंद। रजनी जी जय सच्चिदानंद। जय किरणानंद सच्चिदानंद। जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, पद है निखालस हास्य जे हृदय, CD 32-05। बोलिए। हाँ, उसमें लास्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन है, लास्ट पैराग्राफ, अहो निर्भेद प्रेमेश्वर अलौकिक मूर्त मुक्षेश्वर मोक्षेश्वर निराकुल सिद्धेश सिद्ध सिद्ध ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर आमन छे ज्ञान संगेश्वर। संगमेश्वर। आमन का क्या अर्थ होता है? सही है। हाँ। एक मिनट। Okay, there you are.
ये अमन बताइए क्या? हिरेनान जी। हाँ, अहो निर्भेद प्रेमेश्वर, अलौकिक मूर्ति मोक्षेश्वर, मूर्त निराकुल सिद्ध ज्ञानेश्वर, अमन छे ज्ञान संगमेश्वर। तो कि ये अमन का अर्थ समझने का है ना? हाँ जी। कि ये जो मन है वो मेरा नहीं रहा। अच्छा। हाँ, जो सोचता हूँ, जो मन में विचार आते हैं, वो मेरे नहीं रहे, अमन हो गए। अमन मतलब मन चला गया ऐसा नहीं है। हाँ, समझ में आया? दीपका जी कोई और भी अर्थ है इसका? आप बताइए। अमन का मतलब है कि दादाजी निर्ग्रंथ हुए हैं, वो कोई अभिप्राय उनके अंदर रहा नहीं, वो सीधे ज्ञान काम करता है, इसीलिए संगमेश्वर है। सभी के व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करते हैं, कोई ग्रंथि नहीं रही, इसीलिए वो ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप काम करते हैं। समझ गए? जो निर्ग्रंथ बोलते हैं, निर्ग्रंथ। और जो धीरेनानंद जी बता रहे वो भी हो सकता है, मतलब उसका वो दोनों। उसकी शुरुआत है। अच्छा, उसकी शुरुआत है, यानी मन से वे प्रभावित नहीं होते। सही है। मन की असर में नहीं है, मन को जीत लिया है, तो उसका परिणाम वे निर्ग्रंथ हुए हैं, इसीलिए मन होने पर भी वे अमन है और ज्ञान ही काम करता है। जी। पर एक और बताया, महावीर ना समय मापन हता भेदो गुरु शिष्य। ये मतलब ऐसे था क्या? महावीर के समय में भेद था गुरु शिष्य में जो है, और कैसा भेद था जो है, थोड़ा इस पे बता सकते हैं? तो ये थर्ड लास्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट लाइन, थर्ड लास्ट पैराग्राफ। महावीर ना समय में पण हता भेदो गुरु शिष्य, बलिहारी छे दादानी अभिप्रेमी पे रिझे। तो कि ये भेद की जो बात कर रहे हैं कश्यप जी, तो भेद मतलब ये जो व्यवहार में जो है ना, जिस तरह से व्यवहार है ना, व्यवहार की बात है। अच्छा। अपना जो निश्चय है, निश्चय की बात नहीं है इसमें। निश्चय में तो मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से हिरेन हूँ और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ, तो अभेद हो गए। हाँ, समझ में आया? तो ये निश्चय की बात नहीं है, लेकिन जो व्यवहार की बात है, वो व्यवहार में जिस तरह से गुरु शिष्य में जिस तरह से भेद रखते थे, जैसे कोई जो गुरु है वो ऊपर बैठा होगा, शिष्य होगा वो नीचे बैठा होगा। समझ में आया? तो उसमें आगे लिखते हैं ना, बलिहारी छे ज्यादा नहीं अभेदी प्रेमी। तो क्या व्यवहार में भी दादा भगवान ने कहीं पे भी व्यवहार में भी भेद नहीं रखा। जैसे गाड़ी में जाते थे, समझ में आया? तो एक गाड़ी में समझो आप अपन अभी 4 लोग 5 लोग 6 लोग जाते हैं, दादा भगवान के साथ 8-8 10-10 लोग बैठते थे। अच्छा, ऐसा। समझ में आया? अब गुरु है, गुरु होने के बावजूद भी, व्यवहार में गुरु होने के बावजूद भी वो खुद ऐसे दबके बैठते थे, और जो भी अपने महात्मा है, जो व्यवहार में शिष्य है, उनको बिठाते थे। अच्छा, ऐसा। हाँ, तो मतलब ये दादाजी तो बहुत अपने लिए सेटिंग करते थे, क्योंकि अभी तो अपने लिए तो अभी ये अपना तो इतना विनय नहीं कर पाएंगे जो है अपने लोग जो है, युग के लोग जो है ना, तो दादाजी सेटिंग करते थे, मतलब ये कहना तो। हाँ, इतना बड़ा करते थे बहुत। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, बहुत सारे एग्जांपल। कहीं पे यात्रा पे गए हैं तो खाने के लिए बैठने का है तो नीचे बैठ जाते, और महात्मा, आपने कई फोटो भी देखे होंगे कि दादा भगवान बैठे, उनके साथ सब महात्मा बैठे खाना खाते हैं, सभी साथ में खा रहे। समझ में? सब व्यवहार में कहीं पे भी जो भी आपका पुत्र हो के महात्मा है कि किसी के साथ इस तरह का व्यवहार में भी दादा ने भेद नहीं रखा है। तो क्या हुआ उससे कि सबको अपने लगते थे। जबकि पहले महावीर के समय में मतलब वो क्रमिक मार्ग था, तो उसमें तो
गुरु गुरु शिष्य का भेद होता था ना, ऐसे ऐसा समझ में वो क्रम अक्रम की बात नहीं है, ये दादा भगवान की विशेषता की बात है। मतलब वो आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रमिक अक्रम ये काल में अक्रम है, क्रमिक नहीं है, तो इसलिए हाँ, सही बात लोग उसको फॉलो भी नहीं कर पाएंगे सही से, इसलिए जो है सही बात है, सही बात है, वो बात बराबर है। धन्यवाद। जय जय सच्चिदानंद। गीताबेन, जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहेब, जय सच्चिदानंद। गीतानंद साहेब जय सच्चिदानंद, दीपकानंद साहेब जय सच्चिदानंद। आप जय सच्चिदानंद। बुक नंबर 57 बोलो। पानु नंबर 9, तारीख 1/10/84 84 वडोदरा અને નીચે 5/25 बाइंडिंग नंबर 1717। ओके। हाँ जी, हिरेनानंद जी साहब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इसमें दादा भगवान के कहता गुजराती है में बोलो, गुजराती में बोलो। हाँ बोलू चालશે। हाँ, જેનો તિરસ્કાર તેનો જ ભય લાગે। દાદા ભગવાન કહે છે કે જેનો તિરસ્કાર તેનો જ ભય લાગે। આપણે હમણાં તિરસ્કાર ને અભાવ વિશે વાત થઈ ને, તો આમાં થોડુંક સમજવું હતું કે જેનો તિરસ્કાર તેનો જ ભય લાગે। હા, એટલું જ વાક્ય છે કે બધા લાંબુ વાક્ય છે? ના, આટલું છે, એટલે બધા અમુક વાક્યો આપ્યા છે 10-15, તો એમાંનું આ એક જ તિરસ્કાર ઉપર આ એક જ વાક્ય છે સાહેબ। બરાબર છે, કે જેનો તિરસ્કાર તેનો જ ભય લાગે। બરાબર છે। એટલે આમાં કેવું છે કે મુખ્ય વસ્તુ કે જે તિરસ્કાર છે એ તિરસ્કાર શેને આધારે છે? તો કે પોતે જે પોતાની જે માન્યતા છે અને સામેવાળાની માન્યતા છે, અથવા સામેવાળો વ્યવહાર છે ને આપણો વ્યવહાર છે, એ વ્યવહારમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ફેર પડે છે। એટલે આપણે જે માનીએ છીએ કે આપણે જે સમજીએ છીએ કે આપણે જે એનાથી આપણે જે કરાવવું છે, તો કે એ કરશે નહીં। ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એના આધારે આપણને એક તો અભાવ તિરસ્કાર ઉભા થાય છે। તો કે આજે અભાવ તિરસ્કાર ઉભા થાય છે, હવે આપણી માન્યતામાં શું છે, તો કે આ વસ્તુ આપણને નુકસાન કરતા છે। જે વસ્તુ આપણને નુકસાન કરતા છે એવું આપણને સમજાય છે, એને આધારે આપણને તિરસ્કાર ઉભો થાય છે। અને જે વસ્તુ નુકસાન કરતા છે એટલે એ વસ્તુનો ભય લાગ્યા વગર રહે નહીં। આપણે શું સમજીએ છીએ? આપણે શું સમજીએ છીએ કે આ વસ્તુ મને નુકસાન કરતા છે એટલે તિરસ્કાર કરીએ છીએ। ખરેખર આપણને શું લાગે છે કે આ વ્યક્તિ મને નુકસાન કરતા છે એટલે આપણે એનો તિરસ્કાર કરીએ છીએ, दूर भगाड़िए छे। हिंदी 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 अपने को क्या लगता है कि ये जो व्यक्ति है मेरे को नुकसान करने वाला है तो उसका तिरस्कार करते हैं, ये वस्तु है मेरे को नुकसान करने वाली है उसका तिरस्कार करते हैं, ये अवस्था है ये मेरे को नुकसान करने वाली है उसका तिरस्कार करते हैं। समझ में आया? तो जो जिसका तिरस्कार करते हैं तो क्यों तिरस्कार करते हैं कि उसका भय लगता है उसको। हाँ, मेरे को नुकसान करेगा ये। हाँ, वो भय लगता है ना। लेकिन सही मायने में वो जो व्यक्ति है वस्तु है वो नुकसान करती है नहीं। तो क्या नुकसान करता है? अपने जो नहीं, तो कि जो अपनी मान्यता है वो मान्यता के हिसाब से जो कषाय होते हैं वो नुकसान करता है। ये मेरा अनुभव आपको कह रहा हूँ आपको। हाँ, वही। हाँ जी, हाँ। ये अभी समझो कि कोरोना चलता है तो अपने को क्या लगेगा, ये सैनिटाइज किए बिना आया, अपने तिरस्कार किया उसका,
हाँ 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 भय लगेगा उधर। हम्म समझ में आया? इसने ऐसा व्यवहार किया, ये गलत किया, ये इतना नजदीक से बात करते हैं, उसका तिरस्कार करेंगे, भय लगता है उधर। समझ में आया? तो कि ये जो हाँ तिरस्कार किसका करते हैं कि जहाँ पे उसको ऐसी समझ है कि ये मेरे को नुकसान करेगा। समझ में आया? तो एक बात खास समझ लेने की है कि नुकसान कोई व्यक्ति या वस्तु से नहीं है। नहीं है। और जो व्यक्ति और वस्तु से कोई भी नुकसान होता है वो अपना इस तरह से ऋणानुबंध है। अपना ऋणानुबंध से। सबसे बड़ा नुकसान होता है तो सिर्फ कषाय और कषाय से। ओ अच्छा, सरस। वो तो अपने मथे पे लिख के आए हैं, वो जो ऋणानुबंध है वो तो लिख के ही आया है, वही बनेगा ही वही समझ में आया? जो ऋणानुबंध है वो अलग है कि भाई आप कहोगे कि भाई कसाई से नुकसान होता है तो आप कहोगे कि भाई मेरे को ये व्यक्ति ने नुकसान किया, तो फिर मैं उसका तिरस्कार करूंगी ने, उससे मेरे को भय लगेगा। ये सिचुएशन में आपके पास बहुत सारे एविडेंस होंगे इसके। ये सिचुएशन के हिसाब से मेरे को नुकसान हुआ, तो वो सिचुएशन आएगी तो मेरे को तिरस्कार होगा। समझ में आया? लेकिन आप अपने संजोग को पूरी तरह से देखेंगे तो पता चलेगा कि आपको जो चीज से तिरस्कार है वो सिचुएशन, वो व्यक्ति आपके जीवन में बहुत बार आया है, फिर भी कई बार 100 टाइम्स नहीं, 1000 बार के लाख बार आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, उसका अपने को अंदाजा नहीं है। अपने तो अंदाजा क्या किया कि एक बार ये सिचुएशन अपनों ने देख लिया और ये सिचुएशन के हिसाब से अपने को नुकसान हुआ, तो के नुकसान के हिसाब से उसका तिरस्कार होगा और भय लगेगा। लेकिन सही में नुकसान कौन करता है? तो जब पता चलेगा कि सिर्फ मेरे कषाय है वही मेरे को नुकसान करता है, तो फिर कहीं पे भी तिरस्कार होगा नहीं। समझ में आया? ये जो भय लगता है वही मेरे को नुकसान करेगा, वो तो फिर किसी का तिरस्कार होगा ना, फिर नहीं होगा। समझ में आया? तो कि नुकसान कौन करता है और उसके हिसाब से भय जो लगता है उसकी समझ गलत है। हाँ, अलग समझ कि आपका वो 100% नुकसान होने वाला है, लेकिन आपको वो व्यवहार में कषाय नहीं होता है, तो आप वो व्यवहार में से निकल गए, कषाय नहीं होता है तो। समझ में आया? समझो कि मेरे को अभी जो संजोग आया, लेकिन मेरे को वो संजोग में मेरे को मेरी जो गलतियां दिखी, तो मेरे को कषाय नहीं होगा। क्यों कषाय नहीं होगा? कि मेरे को मेरी गलतियां दिखी। अगर किसी की गलतियां देखता कि ये व्यवहार हुआ था, वो व्यवहार हुआ था, ये ऐसा संभाला नहीं, वैसा संभाला नहीं, उसके हिसाब से ये हुआ वो हुआ, तो फिर तिरस्कार होने वाला है, भय होने वाला है। समझ में आया? तो ये समझने का है कि कोई भी व्यवहार है वहां पे मेरे को क्या संभालने का है कि कोई भी व्यवहार में मेरे को कषाय नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा जो नुकसान है वो कषाय में है और कोई भी चीज में नहीं है, कोई व्यक्ति में नहीं है, कोई वस्तु में नहीं है, कोई अवस्था में नहीं है। આપણે तिरस्कार કર્યા કોઈ વ્યક્તિ का और अंदर कषाय भाव नहीं हुआ, ना नहीं થયો કે हाँ, तो આપણને એ વ્યક્તિનો ભય પછી नहीं लागे ने। कषाय होता है तो उसके हिसाब से ही तिरस्कार होता है। कषाय होता है तो ही अभाव होता है। दोनों है तो। समझ में आया? हाँ, दोनों कषाय होगा और मतलब हाँ, मतलब जो कषाय होगा उसके हिसाब से ही अपन किसी का अभाव
किसी के पर अभाव होगा, तिरस्कार होगा। हाँ, तिरस्कार, फिर बाद में भय उसका लगता है। હવે સમજ આવી, બરોબર સમજમાં બેઠું। तो ये समझने का है कि ये जो नुकसान करता है वो कोई व्यक्ति, वस्तु की अवस्था नहीं है। नहीं, नहीं। या तो मेरे कर्म है, समझ में आया कि कर्म है तो वो कर्म से आप छूटने वाले हैं नहीं, कितना भी भागेंगे। समझ में आया? हाँ। और दूसरा क्या है कि कर्म आपके सामने आ गया, कर्म आपके कर्म भुगतने का संजोग आ गया, तो हाँ, वहां टाइम आ पे गया। मेरे को मेरी गलतियां देखनी, वहां पे मेरे को मेरी गलतियां देखने की है। अगर आपको जो संजोग आ गया है उसका मतलब ये होता है कि आपको आपकी गलतियां देखने का समय आ गया। समय आ गया, बरोबर। जो अभी अच्छा समय था वहां तक आपको आपकी कोई गलतियां नहीं दिख रही थी, अभी ये संजोग आपको कुदरत ने भेजा कि अब देखो, ये संजोग आया है तो अब देखो आपकी गलतियां। बरोबर, एक्सेक्ट। समझ में? अभी संजोग आया और अपनी गलतियां नहीं देखेंगे और दूसरों की गलतियां देखेंगे तो वहां पे आपको ये तिरस्कार होने वाला है, भय होने वाला है। और संजोग आया तो अपना ही गलती देखो। हाँ, संजोग हाँ। ऐसा आया तो अपना कहीं गलती भूल हो तो देखो। हाँ, अपनी गलती कहाँ पे है, ये संजोग आया तो यहाँ मेरी गलती कहाँ पे है। समझ में? अपने को तो ये दूसरे नुकसान करने वाले दिखते हैं, जो मैंने शुरुआत में बताया ना, मेरा अनुभव। हाँ, अनुभव बहुत मस्त था, अच्छा था। मेरे को दूसरे मेरे को नुकसान करने वाले दिखते हैं, उसके हिसाब से मेरे को ये भय और तिरस्कार खड़ा होता है। ये अनुभव से ज्यादा सीखने को मिले छे। हाँ जी, हाँ जी। बरोबर, हाँ जी साहब। એમાં એક લીટી છે નીચે કે પ્રતિકૂળને જ્યારે અનુકૂળ કહેશો ત્યારે જગત શાંત થઈ જશે। પ્રતિકૂળ સંજોગ આવે અનુકૂળ, દીપકાનંદજી છેક નીચે છે, જરા જુઓ। પ્રતિકૂળને અનુકૂળ કહેશો ત્યારે જગત શાંત થઈ જશે। તો ગીતાબેન, આમાં કવિરાજનું બહુ સરસ પદ છે, યાદ છે તમને? ના, આપ કહો જરા। જગતને લાગે જે પ્રતિકૂળ, અમોને તેજ અનુકૂળ છે। ઊંધા સંયોગને સવળા समझिया तेज महाशूर छे। तो कि ये जो जगत के लिए या अपने लिए जो प्रतिकूल जो समझते हैं, तो कि अपन जो प्रतिकूल किसको समझते हैं? अपन ने बरोबर આપણી પ્રકૃતિને સેટ ના થાય એટલે પ્રકૃતિ પ્રતિકૂળ કઈ કહેતા આપણે। कोई भी व्यवहार में अपने को दुख होता है, अशांता होती है, आदि व्याधि उपाधि होती है, समझ में है? तो उसको अपन प्रतिकूल कहेंगे। हाँ, प्रतिकूल कहे। समझ में है? लेकिन ये जो प्रतिकूल संजोग है, अनुकूल क्यों है, ये समझने का है कि जो प्रतिकूल है वो अनुकूल क्यों है। तो कि जितना प्रतिकूल संजोग आएगा उतना मैं हिरन के भाग में, मैं संसार के भाग में नहीं रहूंगा, उतना ही मैं आत्मा तरफ जाऊंगा। तो आत्मा तरफ जाएगा तो कितनी बड़ी अनुकूलता हुई वो। जितनी अनुकूलता उतना मैं संसार के तरफ प्रति जाऊंगा। जितनी मेरी प्रतिकूलता उतना मैं आत्मा में रहूंगा। आत्मा पे नजीक जैसू। हाँ, उतनी वो आज्ञा में रहेगा। आज्ञा में नहीं तो सुख आपको ज्यादा मिलेगा, संसार का सुख ज्यादा मिलेगा, अनुकूलता ज्यादा मिलेगी,
तो तो आप आत्मा नहीं है, आज्ञा का उपयोग कहाँ करेंगे? नहीं आत्मा के रहेगा प्रति, आत्मा, आत्मा के प्रति कैसे जाएंगे? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, बरोबर છે। तो हमारी अनुकूलता कहाँ पे है? तो कि जो संजोग में मेरे को आत्मा में रहने का मिलेगा वो ही मेरी अनुकूलता है। अरे वाह, वाह, वाह। और आत्मा में रहने का संजोग मेरे को कब मिलेगा? तो कि मेरे व्यवहार में, मेरे संजोग में जहां जहां पे भी प्रतिकूलता आएगी वहीं पे मेरे को आत्मा में रहने का संजोग मिलता है। साची बात છે। प्रतिकूलता में ही आत्मा का आनंद आता आवे छे। पूरा दादामय हो जाता है वो, दादामय हो जाता, सच्ची बात एकदम। क्योंकि उसके पास जिसको भी दादा भगवान मिले हैं तो उसके पास कोई भी कुछ भी दिक्कत आती है तो अपने सबका अनुभव है कि अपने कोई भी दिक्कत आती है तो अपने पास दादा भगवान के सिवा कोई रास्ता नहीं है। खरेखर खरेखर खरेखर। और गीताबेन સરસ સરસ સમજાવ્યું હિરેન્યાનંદજી સાહેબ। જય સચ્ચિદાનંદ। દીપકાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। ચિંતનભાઈ जय सच्चिदानंद हिरानंद जी। जय सच्चिदानंद। अभी आपने वो बच्चों के साथ बात की, आपने बताया कि पहले हमारे मन में रोग की शुरुआत होती है और फिर में शरीर में वो दिखता है। तो ये रोग हमारे पूर्वजों के कर्मों के हिसाब नहीं है। जैसे कि हमने किसी का बुरा किया हो, किसी की चारी चुगली, किसी को दुख दिया हो, तो उसके आधार से हमें ये सब रोग मिलते हैं इस जन्म में। हाँ, वो सब मन का ही है ना, वो सब मन का ही है। मेन चीज क्या समझनी चाहिए इसके अंदर कि ये जो मन का रोग बताया ना, तो सबसे बड़ा रोग कौन सा है मन का? तो कि मैं हिरेन हूं। समझ में आया? सबसे बड़ा रोग ये है, वहां से सब रोगों की शुरुआत होती है। वो तो है। और ये अपने को, ये जो दादा भगवान ने अपने को ज्ञान दिया वो कृपा से दिया है। अपने व्यवहार में अभी भी जो अपन लेके आए हैं वो व्यवहार जहां जहां पे भी होता है तो वहां पे अपने को देखने का है कि ये मेरी गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है। ये जो ये मेरे मन का रोग कौन सा रोग है। बहुत सारे रोग होते हैं, मतलब और रोग मतलब वो वहां पे अटक जाता है। जो रोग होता है ना, वो रोग में वो अटक जाता है, रुक जाता है वहां पे। वो तो इग्नोरेंट की बात की ना कि हमको मैं कौन हूँ जब तक नहीं पहचाना तब तक सभी रोग ही है। वो तो है 100% है, इसमें कोई शंका नहीं है। पर मैं शरीर के रोगों का पूछ रहा था कि मन में अगर किसी के बारे में खराब विचार आए, किसी के बारे में किसी का कुछ खराब करने का सोचा, तो इसके हिसाब से ये रोग शुरू होते हैं। हाँ, बराबर है। पर अभी जो रोग लेके आए हैं हम, वो तो अगले जन्म के है ना। नहीं, अगले जन्म के अपन ये अगले जन्म, ये जन्म कैसा है? क्या नाम आपका? कंचन भाई। कंचन भाई, ये अगले जन्म और इस जन्म में कैसा है कि अपनी जो अज्ञानता है, मेन चीज अज्ञानता है। अगला जन्म है कि पहले की जितने भी जन्म है, तो अपनी जो अज्ञानता है वो सबसे बड़ा रोग है। और क्यों? क्योंकि अज्ञानता के हिसाब से जो भी व्यवहार होते हैं, समझ में आया? तो सबसे बड़ा शुरुआत कहाँ से होती है? तो कि मन से होती है। समझ में आया? फिर उसका वाणी में आएगा और उसके बाद वर्तन में आएगा। बराबर। समझ में आया? तो सबसे पहले मन है।
कि ये जो मन का जो रोग है, सबसे बड़ा रोग कौन सा है? तो अज्ञानता। राइट। समझ में? तो अज्ञानता के हिसाब से फिर जितने भी अपने कर्म है, वो कर्म उसको भुगतने के लिए आते हैं। लेकिन जो मन की जो अभी अपने को ये ज्ञान मिला, ये जो समझ मिली, तो मेरे अंदर जो भी अज्ञानता के हिसाब से जो भी अंदर पड़ा है, वो देखने का मिलता है। अलग अलग करके भी देखने का मिलता है कि कहाँ कहाँ भी मेरा अभाव तिरस्कार मेरे को हुआ, कहाँ मेरी वाणी कठोर भाषा, तंत्रिली भाषा हुई, कहाँ मैंने किसी का अहम दुभाया। समझ में आया? तो ये जो पूरा ये जो अपना व्यवहार है, वो अज्ञानता के हिसाब से ये सब खड़ा हुआ था, और अभी ज्ञान मिला, उसके हिसाब से अपने को ये अपने मन में जहां जहां पे भी ये सब होता है, वो देखने को मिलता है। तो ये बात क्यों करी, ये बात किस अपेक्षा से करी, वो बताऊं कि ये इस अपेक्षा से करी कि अपने को कोई भी कुछ भी होता है तो अपने ज्यादातर बाहर के संजोग देखते हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट दिखाती है कि डॉक्टर दिखाते हैं, तो वो संजोग अपन देखते हैं, वो गलत नहीं है, वो व्यवहार से सही है। लेकिन अपने को ज्ञान मिला है, तो अपने को तो पूरा अपना अंतस्करण देखना पड़ेगा। बराबर। समझ में है कि भी मेरे मन के अंदर अभी तो ये कोरोना आया, लेकिन आपकी पुण्य है तो अभी कोरोना नहीं होगा, लेकिन अंदर जो पड़ा है अंतस्करण में, तो उसके हिसाब से बाद में दूसरा कोई रोग आएगा तो दूसरा कोई होगा। राइट। समझ में आया? लेकिन रोग है, उसमें बाहर के संजोग है, लेकिन बाहर के संजोग क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ निमित्त है, सिर्फ निमित्त है, मेन नहीं है। मेन कहाँ पे है? मेन मेरे में है। करेक्ट। वो बात करने के लिए बात करी थी। बराबर कंचन भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चलो क्वेश्चन से मुकेश भाई। जय सच्चिदानंद। मुकेश भाई। जय सच्चिदानंद। હા, હું દીપકાનંદજીને પદનું મોકલતો હતો જ. આજ્ઞાને ચિતરેલા ચોપડામાં સીડી નંબર, yes, સીડી નંબર આઈ થિંક ઇઝ 73 or 72. આજ્ઞાને ચિતરેલા ચોપડામાં. you have to wait. CD 73 number 2. ओके, बोलो ત્યાં સુધી, बोलिए आप तब तक। हाँ जी, उसका क्वेश्चन था नीडेड मोर इलेबोरेशन ऑन अ लाइन दैट, जो जिससे है ना काफी उसका स्ट्राइक हुआ कि આપણે શુદ્ધાત્મા સામે શુદ્ધાત્મા વચ્ચેના પૂદગલ निर्जरता खरसे। और ये हिरेनानंद जी ने प्रीवियसली अभी बात की, उसके साथ भी काफी कनेक्शन है। आई मीन उसमें थोड़ा आंसर मिला, लेकिन आपकी जो समझ है, आपका जो उसका उस पे ज्यादा प्रकाश पाड़िए जी। ये जो टाइटल है अज्ञाने बंधेला चित्रेला चौपड़ा, गत जन्मों सिक्के दावो जो आजे। हाँ, तो इसमें क्या क्या बात करनी है, क्या समझना है? कौन सी लाइन? उसकी लाइन है द 4th वर्स। ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવાથી કરમરૂપી ફાચર નીકળશે, આપણે શુદ્ધાત્મા સામે શુદ્ધાત્મા વચ્ચેના પૂદગલ निर्जरता करसे। ये पूरा जो है ना, वो तो एकदम आम बहुत अच्छा अंदर स्ट्राइक होता है। तो आपकी जो उस पे क्या समझ है, या आप ज्यादा समझाइए उस पे, जिससे हमारी समझ खुले।
તો એ જો બતાયા હે ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવાથી કર્મરૂપી ફાચર निकलશે કે ये जो कर्म है तो ये जो कर्म ये उसकी निर्जरा हो रही है, लेकिन ये निर्जरा किस तरह से होगी तो कि ये जो अपनी आज्ञा है दादा भगवान की फाइलों का संभाव से निपटारा करने का। हाँ जी। तो कि ये जो फाइलों का संभाव से जो निपटारा करते हैं तो कि ये जो कर्म है तो ये कर्म पूरे हो जाएंगे, वो आपको अड़ेंगे नड़ेंगे नहीं, और आगे आगे जो जाके जो बंधन खड़ा होता है वो नहीं होगा। આપણે શુદ્ધાત્મા સામે શુદ્ધાત્મા વચ્ચેના પૂતગલ निर्जरता करसे। तो के सही में तो क्या है कि मैं शुद्धात्मा हूं और आप भी शुद्धात्मा है, और ये पुद्गल है। तो कि पुद्गल का स्वभाव कैसा है तो कि पूर्ण और गलन। सही में जो है नहीं उसको है माना है, अभी पूर्ण हो रहा है, बाद में गलन होगा। तो मतलब ये पुद्गल जो है वो निर्जरने वाला है, खरने वाला है। सिर्फ जो शुद्धात्मा है, मैं शुद्धात्मा हूं, आप शुद्धात्मा है, वो मेन चीज है। तो खरने वाले का जो जो the thing which keeps it bound to the लेके जे आवरण जैसा रहता है, उसको कैसे फटाक करके जो जो पॉइंट है जिससे वो अलग एकदम रह सके, उससे उसके पर थोड़ी प्रकाश पाड़ो तो पुद्गल ऐसे निर्जरता होए और हम संभाव से निकाल होता रहे। हाँ, तो कि ये ज्यादा हाँ, तो ये कब होगा तो कि ये जो कर्म की बात करी इसमें वो कब होगा तो कि जब मेरी जो दृष्टि है वो बाहर नहीं होगी, मेरी दृष्टि अंदर होगी। मतलब ये जो हिरण का भाग है उसमें मेरी दृष्टि होगी तो मैं मेरे कर्म को सही तरीके से देख पाऊंगा और जान पाऊंगा। अभी क्या है कि अपनी जो दृष्टि बाहर चली जाती है तो बाहर चली जाने के हिसाब से अपने को बाहर कहीं ना कहीं बाहर गलतियां दिखती है। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा बोला, इससे ऐसा हुआ, ये सब जो हो रहा है वो बाहर की दृष्टि के हिसाब से क्या होता है तो कि फाइलों का संभव से निपटारा भी नहीं होता है, और वो जो कर्म है उसमें अपन रुक जाते हैं। हाँ, समझ में आया? ये जो निर्जरा होने की बात हुई वो निर्जरा नहीं होती है, वहां पे अपने अपने रुक जाते हैं, निर्जरा नहीं होती है। अभी निर्जरा कैसे होगी तो कि ये जो कर्म है, कोई भी अपने को आधी आई, व्याधि आई, उपाधि आई, कोई भी दुख आया, तो वहां पे मेरी क्या गलती हुई? जब मेरे को मेरी गलतियां दिखाई देगी तो उसका जो जो संभव से निपटारा करने का है वो करना नहीं पड़ेगा, अपने आप संभव रहेगा। क्यों कि मेरे को मेरी गलती दिखाई दी। हाँ जी, समझ में आया कि मेरे को मेरी गलतियां दिखाई दी, तो ये जो संभव से निपटारा है तो ये करने का है कि समझ है? समझ है। तो कि जितनी समझ सही हो गई उतना संभव आपको रखना नहीं पड़ता है, संभव रहेगा। हाँ जी। तो कि समझ मतलब कौन सी समझ, इधर कौन सी समझ समझने की है तो कि जहां पे भी कुछ भी होता है, कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दुख होता है, समझ में आया? आदि व्याधि उपाधि कुछ भी आती है तो वहां पे बाहर का कोई भी संजोग गलती वाला नहीं है। भले मेरे को बाहर की गलतियां दिखाई देती है लेकिन अंदर समझ पक्की करने की है, बाहर गलती नहीं है, अंदर कहीं ना कहीं गलती है। उतना पक्का हुआ तो आपको आपकी गलतियां देखने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, आपको आपकी गलतियां दिखने लगेगी और संजोग का संभव से निपटारा करना नहीं पड़ेगा, अपने आप आज्ञा में आप आ जाएंगे। हाँ जी, यस सर। समझ में आया? तो और ये जो कर्म का
पुद्गल जो पुद्गल निर्जरा है, तो जो कर्म की निर्जरा है वो निर्जरा करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप निर्जर हो जाएगा पुद्गल। तो जो खुद की भूल देखने से वो जो 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 बांध के रखी है वो जो रस्सी वो कट जाती है और संभाव से निकाल हो जाता है, वो निर्जरता होती जाती है उसकी। हाँ, भूल देखने से वो कर्म की निर्जरा होती है। और जब नहीं एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि काफी टाइम ऐसे हुआ है जब ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तभी तो ऐसे ही लगता है कि वो जो सामने वाले का फॉल्ट है, और वो जो है ये उसका, वही आपने कहा कि भाई अंदर की जो है वो देखना है, सामने वाला बाहर कोई है ही नहीं, वो तो निमित्त है सिर्फ, और अंदर देखना है तो फिर ही छूटेंगे, नहीं तो नहीं छूटेंगे। हाँ, लेकिन ये गलतियां दिखेगी कब? अपने को अपनी गलतियां देखने की है, दिखेगी कब? हाँ, क्योंकि सबसे पहले निर्णय निश्चय ऐसा हो जाना चाहिए कि बाहर की कोई भी चीज मेरा बिगाड़ने वाली 1% भी बिगाड़ने वाली नहीं है, बाहर की कोई भी चीज। हाँ, मैं ही मेरा खुद सुधारने वाला हूं और मैं ही मेरा खुद बिगाड़ने वाला हूं। हाँ, यस, बराबर। तो आपको आपकी गलतियां अपने आप दिखने की चालू होगी। हाँ जी, हाँ जी, समझ में जी। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद नीताबेन। जय सच्चिदानंद। या जय सच्चिदानंद। भीलवाड़ा के जानमल जी हॉस्पिटलाइज है, तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और दूसरे धर्मेंद्र भाई है, उनकी भी करनी है, तो साथ साथ अपने नवीन आनंद जी करवा रहे हैं। विनीता बहन यहाँ हाजिर है, तो आप फॉलो करिएगा, अनम्यूट करिएगा। जय सच्चिदानंद। हाँ, नवीन आनंद जी विधि बोला ना, श्रीमंत्र में बोला नहीं, सीधी विधि। हाँ जी, विधि। हाँ जी, आप बोलिए विनीता जी हो साथ ही मेरे बुलाने के बाद। हे वर्तमान तीर्थंकर, हे वर्तमान तीर्थंकर, अरिहंत परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे वात्सल्य मूर्ति, हे वात्सल्य मूर्ति, सर्वज्ञ श्री दादा भगवान, सर्वज्ञ श्री दादा भगवान, हे सर्वे शासन, हे सर्वे शासन, रक्षक देव देवियों, रक्षक देव देवियों, हे माँ पद्मावती देवी जी, हे माँ पद्मावती देवी जी, हे दिव्य अम्बा माता जी, हे दिव्य अम्बा माता जी, आप सभी को अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करते हैं और हृदय से अंतर से हम सभी महात्मा वृंद प्रार्थना करते हैं कि महात्मा श्री ज्ञानमल जी और धर्मेंद्र जी आप अभी कर्म का उदय उनको कर्म का उदय आया हुआ है उसमें वह संपूर्ण रूप से सुख शाता में परमानंद में रहे और ये उदय कर्म जाने के लिए आया है और जा ही रहा है
और जा ही रहा है, तो वह उदय कर्म में, तो वह उदय कर्म में उनकी तंदुरुस्ती बनी रहे, उनकी तंदुरुस्ती बनी रहे, तबीयत जल्द से जल्द, अत्यंत जल्द से जल्द, तबीयत जल्द से जल्द तबीयत जल्द से जल्द सही हो जाए, सही हो जाए, ऐसी हे दादा भगवान, ऐसी हे दादा भगवान उनके पर कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, और फिर से वो मूल रूप में आकर दादा में आज्ञा में रहकर अपना जीवन जिए, ऐसी शक्ति आप उसे दे, ऐसी शक्ति आप उन्हें दें, और ये कर्म के उदय में आप उनके साथ हाजिर रहकर उनकी पूर्ण रूप से रक्षा करना, ध्यान रखना और संभाल लेना, ये जिम्मेदारी आपको सौंपकर हम मुक्त रहेंगे, और वह भी मुक्त रहेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत आभार सभी का, बहुत बहुत आभार। जय सच्चिदानंद मेधा जी, जय सच्चिदानंद। सभी को जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी अनुभव का समय है, तो आगे हम सुरेश जी खरे हमारे बीच आए हैं, वापस साइंटिस्ट है, तो उनसे हम सुनेंगे दादा भगवान के ज्ञान का अनुभव। पधारिए। जय सच्चिदानंद सुरेश जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपकी बेटी भी आई है, गुंजन। गुंजन भी आई। हाँ, उसको देखा था। जय सच्चिदानंद। वीडियो ऑन करो गुंजन जी। कैन आई स्टार्ट सर? यस प्लीज, यू स्टार्ट। श्री सिमंदर स्वामी जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। श्री दादा भगवान को भक्तिपूर्वक सादर नमन करता हूँ। इस जगत के सभी देवी देवताओं को साष्टांग नमस्कार करता हूँ। आदरणीय आप्त पुत्रों को सादर नमन करता हूँ। इस कोरोना काल के दौरान आदरणीय दीपकानंद जी, श्री रजनी भाई जी ने जो तन मन से महात्माओं को घर बैठे सत्संग का लाभ पहुंचा रहे हैं, हम सभी महात्मा बड़े ही कृतज्ञ हैं, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दादा के सभी 5 आज्ञा आज के युग का एक अध्यात्म की खोज है, जो सरल सहजता से दृष्टि दिखाती है और समझ जाती है। रियल रिलेटिव तो एक ऐसी खोज है दादा की, जो सिर्फ अनुभव से ही अंदर समझ के अंदर आंतरिक सुख, शाश्वत सत्य स्थापित करती है। महात्माओं की आत्मा व शरीर की जो मान्यता से जोड़ा गया है, एक गीता का दोहा मुझे याद आ रहा है रिलेटिव के लिए। आंखें देखे मौन मुख सहा कहा नहीं जाए, लेख विधाता का लिखा कौन किसे समझाए। संसार में जो भी अवस्थाएं रिलेटिव द्वारा हो रही हैं, उसे देखना है, समझना है और स्वीकार करना है, यही हमारे हाथ में है। अब रियल किसे कहते हैं? कृष्ण ने भी, मैं कभी कभी आजकल गीता पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें रियल का एक दोहा मुझे याद आया था, तो वो सुनाता हूँ कि विश्व रूप दिखला रहे विश्वर हे भगवान, आंखें जिनके पास हों ले जिनको पहचान। रियल शुद्धात्मा आत्मा परमात्मा का अंश एक है, जो सभी में विद्यमान है। मोक्ष तो आत्मा को प्राप्त होगा, जन्म मरण के चक्कर से अनंत काल से जो चला आ रहा है, आज ज्ञानी पुरुष के माध्यम से ज्ञान का दर्शन हुआ है। और रियल रिलेटिव और कुदरती अवस्था जो खरे भाई की हैं,
वो कर्मों के हिसाब से रियल शुद्धात्मा शरीर का साधन ऐसा समझता है जो अमर है। देह तो नाशवान है, जो मर जाता है। हम हैं, हम रहेंगे और हम होंगे भी। सिर्फ परिवर्तन है देह का, जैसे कि कपड़ों को बदलना और कुछ समय के लिए पहनना और फिर उतार देना। दादाजी ने बहुत बड़ी खोज की जो शाश्वत सत्य है इस संसार की और आज के युग की है। एक ऐसा समझो जो गीता के माध्यम से समझे तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण कभी युद्ध क्षेत्र में कि अर्जुन को बता रहे थे कि तू क्षत्रिय है और तेरा काम करना है, धर्म की रक्षा करना है, परम धर्म जो बनता है परम धर्म को तू पाल। जो भी सामने युद्ध में खड़े हुए हैं वे सभी आरोपित हैं, समय काल और व्यवहार से अधर्म का साथ दे रहे हैं। रिश्ते नाते सब एक मान्यताएं हैं, पहले क्या थे और अब क्या होंगे और फिर भविष्य में क्या होंगे। इसलिए तू कर्म कर, मेरा निमित्त बन और करना करना तो सब कुछ मुझ पर तू छोड़ दे। दादाजी का रिलेटिव सिद्धांत संसार का एक ऐसा सूत्र है जिन महात्माओं के समझ लिया तो उनका मोह माया क्रोध मान लोभ निश्चिंत से वो दूर हो गए। हम रियल में शुद्धात्मा हैं, रिलेटिव में खरे हूँ, जिससे क्रोध मान माया लोभ ये सब अवगुणों से अवस्था के अनुसार अपने में मैं समाप्त करना चाहता रहता हूँ और हो भी रहा है। मेरा अनुभव क्या कहूँ, मैं आज भी बड़ी बड़ी कंपनियों में एज ए कंसल्टेंट करके पॉलीमर टेक्नोलॉजी के जाता हूँ। बड़ौदा में ऐसी कोई कंपनी नहीं छोड़ी होगी जिसमें कंसल्टेंसी नहीं की। आजकल कई लोग कहते हैं कि खरे को कुछ आता नहीं है। खरे तो पहले आता था, उससे ज्यादा नॉलेज तो अब हम में आ गया है। किंतु स्टार्टिंग में जब वो घर पर आकर के खड़े रहते थे और खरे जी करते थे, एक जमाना था, मान शोहरत बदनामी अब सब मुआ की है, ऐसा मैं समझता हूँ। कभी सोचता हूँ कि दादाजी के आप्त पुत्रों ने जो ये ज्ञान दिया और दादाजी ने आप्त पुत्रों को वेल क्वालिफाइड आप्त पुत्रों को समझ करके ये ज्ञान बताया, तो सोचता हूँ कि क्यों किया होगा। फिर बुद्धि से समझ में आया कि ये ज्ञान भरत क्षेत्र में कोने कोने तक दादा का विज्ञान का दर्शन प्राप्त हो, दादा की आध्यात्मिक मोक्ष की खोज, जीवन मृत्यु के चक्कर से दुखों से जन जागरण की भावना जागृत करेंगे, ऐसा कभी कभी मन में विचार आते हैं। क्योंकि सभी आप्त पुत्र आज वेल क्वालिफाइड हैं, सभी में रियल रिलेटिव डिस्चार्ज कुदरत व समभावना भरी हुई है, जो एक दूसरे के प्रति दुख सुख का दर्द और भावना को परस्पर समझते हैं, सहयोग करते रहते हैं आपस में, तथा जनता और महात्माओं के लिए भी वह उनका दायित्व भी यही बनता है। मुआ शब्द दादाजी ने डिस्चार्ज समझने के लिए मान मर्यादा अपमान से समझ में आता रहता है। जब कभी भी मैं कंपनी में जाता हूँ तो दादा खरे का रिलेटिव पार्ट जा रहा है, अपना ख्याल रखता हूँ। जब कभी वहाँ कई लोग वाह वाह कहते हैं कि और कभी कभी हाय हाय करते हैं खरे के लिए, तो मजा आता है कि अंदर से कि क्या खरे का डिस्चार्ज है। मुझे खरे को इतना ही मालूम होता है कि शाम को खरे को कंपनी से पैसों का चेक लेने का है और दादा की कृपा से मिल भी जाता है। आजकल मैंने देखा गीता का ज्ञान कुछ कुछ है ना दादा की आज्ञा से मिलता जुलता है। अध्यात्म अध्याय 2 से मैंने 18 अध्याय तक का वर्णन देखा। उसमें रियल रिलेटिव अर्जुन को कृष्ण ने समझा रहे थे, तब उसने गांडीव धनुष उठाया और निशाना लगाया कि कहा कि करता धरता तो सब कृष्ण मैं ही हूँ अर्जुन, तू तो निमित्त मात्र है। दादा की 5 आज्ञा इतना सार है कि सभी अध्याय का निचोड़ वह सीधे आत्मा शरीर के व्यवहार के निमित्त से जोड़ते हैं और 4 कर्मों को
जो भी चार्ज हमारे शरीर में कर्म है वो उनको भूलों को हम प्रतिक्रमण करके मिटाना चाहते हैं। ये दादा में बहुत बड़ी कलयुग की खोज कर दी है। आज सिमंदर स्वामी जी का दर्शन की भी खोज दादा ने ही की है। मैं खरे पहले बहुत प्राउडी था, धन खूब अर्जित किया, फिजूल खर्च भी किया। पहले ऑयल पेंट से लेकर के लेक्चर देने जाता था। अब ज्ञान से सिंपल खरे की आत्मा और खरे के रिलेटिव पार्ट को ज्ञाता दृष्टा के रूप में रहता हूँ। रोज प्रार्थना और प्रतिक्रमण करने का काम करता रहता हूँ। किसी भी जीव को मेरे प्रति दुख ना पहुंचे, यही मेरी भावना रहती है। करुणा, विनय, हाउ मच आई कैन हेल्प टू अदर, यह भावना बनी रहती है। दादा की सोच, खोज, समझ, जन जागरण और जागृत करने का नियमित कर्मों से परे अपने भावों को सहजता और स्वच्छ भाव से जीवों को महात्माओं के प्रति जागृत करने की यही मेरी सोच बनी रहती है। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। और ये कुछ जो शब्द हैं दादा ने, मुआ, फाइल, हिसाब, रिलेटिव, कुदरत, ये शब्द कभी कभी मुझे बड़े सुनने में बड़ा मजा आता है। एक अनुभव मैं कहता हूँ कि मंदिर सूरत में टाइल्स लग रही थी, तो सभी लोग इकट्ठे थे और उसमें पूरा केमिकल पूरे मंदिर में मेरे ही गया है, तो चिपकाने का काम होता था। तो मैं सिमंदर स्वामी के जब स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे जाकर के जब काम चालू हुआ तो मैंने दादा से प्रार्थना करी कि मेरा केमिकल बराबर काम करे, और वो काम किया। ये दादा का बहुत बड़ी वो है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिले। अनिल ने, जो वहाँ पे मंदिर के वो अनिल मैनेजर हैं, उन्होंने, मैंने बोला कि भाई एक आपकी मुझे एक दादा की फोटो चाहिए है, तो उन्होंने वहीं से मंदिर से उठा करके, ऑफिस से उठा करके मुझे सीधे दे दी। बोले खरे तू ये ले जा घर में रखना। आज वो जब कभी भी मैं जाता हूँ बाहर तो उन दादा का आशीर्वाद लेकर के जाता हूँ, मुझे बहुत आनंद मिलता है और मेरे सभी काम आराम से हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सभी को मेरा जय सच्चिदानंद, सभी महात्माओं को यही मेरा अनुभव है साहब। जय सच्चिदानंद। हिरेनानंद जी, अपना प्रतिभाव दीजिए। ये जो महात्मा जो बात करते हैं तो, और दादा का अनुभव कहते हैं, आपता पुत्रों के सत्संग का अनुभव कहते हैं, इतना आनंद होता है कि क्या दादा भगवान है, क्या आपता पुत्र है, क्या महात्मा है, क्या जय सच्चिदानंद संघ है, किस तरह से सब चलता है कुछ समझ में नहीं आता है। और सबको इतने सब कुछ भी संजोग आते हैं, लेकिन दादा के नाम से सबका काम हो जाता है और सबको जो आनंद उसका मिलता है, वो ऐसे ऐसे जो अनुभव सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है। और जो आपता पुत्रों से और ये जो अभी जो व्यवस्था हुई है वो बहुत अच्छी हुई है और उससे सबको बहुत लाभ मिल रहा है, हमको भी बहुत लाभ मिल रहा है आपसे। और ये जो रजनी भाई आप मिलके जो करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं और ये काम के हिसाब से ये सब महात्माओं को ये सब अनुभव हो रहा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी, आपने कुछ ऐसी बातें बताई है कि देखना है और समझना है, तो हमारी जो अंतरात्मा दशा में हमें बिठाया है दादा ने, और वहाँ जो दो दृष्टि से देखना है, तो निश्चय दृष्टि से देखना है यानी समझना है व्यवहार को, क्या समझना है कि उसमें क्या गलतियां रहती है। जैसे आपने बताया चार्ज कर्म कैसे है सब, और उसके प्रतिक्रमण करवाने हैं व्यवहार दृष्टि से। तो करने का काम वो व्यवहार दृष्टि का है और देखने का काम निश्चय दृष्टि का है। इसीलिए ये हमारी अंतरात्मा दशा है, अंतरात्मा दशा की भूमिका है। और वहाँ अंदर बैठे बैठे ये व्यवहार जो मरा हुआ है, निश्चेतन चेतन है, उसको हमें सहज करना है, नॉर्मल करना है प्रतिक्रमण के द्वारा। शुद्धात्मा दृष्टि से, निश्चय से हम भगवान के पास बैठे हैं अंदर,
और व्यवहार से ये सब काम किए जाते हैं। हमारी भावना है कि लोगों का कल्याण हो, तो और किसी को भी दुख ना हो, तो ये काम व्यवहार दृष्टि से कर्ता भाव बगैर करते हैं, क्योंकि शुद्धात्मा दृष्टि के साथ होने के कारण व्यवहार दृष्टि से हम व्यवहार ठीक तरह से रिपेयर करते जाते हैं, क्योंकि उद्गल में कर्ता भाव नहीं है। और इतना ही आज्ञा का हमें कर्ता भाव रहा है, जो पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण बनकर वहां महाविद्य क्षेत्र में ले जाएगा। और बाकी तो आप बड़ा अच्छा सोच समझ कर आगे क्या ये विज्ञान समझते जाते हैं, लेकिन व्यवहार समझ के उसे अच्छा समझ लिया है कि ये मुआ है ना, उसकी सब झंझट है, और अंदर बैठे बैठे रिपेयर करते जाते हैं शुद्धात्मा दृष्टि के साथ, और मुक्तता का अनुभव करते हैं। गुंजन जी, आपको कुछ 2 शब्द बोलना है तो बोलिए जरूर से। आइए हैं तो बच्चों के साथ कैसे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं बढ़िया हूँ, सब लोग अच्छे हैं। वो तो अच्छे ही है ना, लेकिन पापा मम्मी के आशीर्वाद से, पापा मम्मी इतने ब्रिलियंट है, उनके आप ब्रिलियंट बच्ची है, तो आप ये विज्ञान को कैसे उपयोग करते जल्दी बताइए। मैं अभी कोविड पॉजिटिव थी। लास्ट मतलब 21 डेज बैक मुझे कोविड था। सो उस टाइम मैं मतलब थोड़ी नेगेटिव हो गई थी, बट फिर मैंने दादा का ज्ञान अप्लाई किया और मैंने बोला कि गुंजन को है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और मैं अंदर वाले भगवान से शक्ति मांगती रहती थी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे 21 डेज कहाँ चले गए मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना मुझे कुछ वीकनेस आई, ना कोई भी प्रॉब्लम हुआ, और मेरा सब अच्छे से हो गया। नाउ आई एम वेरी वेल, मतलब अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दादा का आज्ञा का मैं यूज करती रहती हूँ। वेरी गुड। ज्ञान में रहने की पूरे 5 आज्ञा की तो नहीं होती, बट देन ऑल्सो मैं ट्राई कि मैं जितना कर सकूं तो करती। दादा ने बताया है 1-2 भी पालन करेंगे तो उसमें 5 का लाभ मिलता है। जी जी जी। और मेरी फ्रेंड्स भी जो है वो यहाँ भोपाल में मुझे दिन भर बताती रहती हैं, जैसे भोपाल में भी बहुत केसेस हैं कोविड के बहुत पॉजिटिव है ये वो, लेकिन मैं उनको दादा का ज्ञान बताती रहती हूँ। तो वो लोग बोलती तू इतनी पॉजिटिव कैसे रहती है, तो मैं बोलती हूँ मेरा दादा भगवान का ज्ञान जो है आप्त पुत्र का है, उनकी वजह से मुझे बहुत पॉजिटिवनेस है और उसकी वजह से ही मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती। तो वो लोग भी पॉजिटिव हो गई, वरना वो लोग हमेशा बोलती रहती अभी ये हो गया, अब वो हो गया, अब आगे क्या होगा, अब आगे बुरा ही होगा। बहुत अच्छे। लेकिन अब वो चेंज हो गई है। बहुत अच्छे। देखो दादा का जगत कल्याण का काम आप कर ही रहे हैं वहां पर। जी जी किए बगैर। बहुत अच्छे। मैंने उनको बताया भी, तो उन्होंने बोला अगर आएंगे तो हमको भी दर्शन कराना। जरूर से जरूर से। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, रमा बहन, गुंजन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। साफ नहीं है घर पर गुंजन जी? जी 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 जी। क्या वो प्रियांश, क्या है वो प्रियांश और आदित्य। प्रियांश आदि भी बढ़िया, एक्चुअली वो लोग थोड़ा होमवर्क कर रहे हैं दूसरे। ठीक है फाइन। तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो आपके दर्शन करवाऊंगी। जरूर फाइन, नो प्रॉब्लम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खरे साहब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। गुंजन जी बहुत अच्छा, बढ़िया। अभी टाइम हो गया तो हिरणान जी आप त्रिमंत्र बुलाए तो उन लोग को फॉलो करेगा। गुंजन जी आप भी फॉलो करिए, अनम्यूट कर। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौवपावपणासनो, सौवपावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सौवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।